वर्ष की विशेषता है और इसी विशेषता को लेकर के संघ कार्य की निर्मित परम पूज्य ने डॉक्टर जी ने की। चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं भाषा भगिनियों में श्रेष्ठ हमारी देववाणी संस्कृत से, और संस्कृत के बाद प्रस्तुति होगी बंगाली की। देववाणी संस्कृत का पहला गीत केशवम स्मरामि सदा बिंदुराष्ट्र संघटकं सुजनवंतनीय केशवं स्मरामि सदा पीडितहृदयं केशवं स्मरामि सदा परमपूजनीयं केशवं स्मरामि सदा परमपूजनीयम् भगवद्वदेव राजगुरुरयं महान् देशोऽयं खलु देवो जगति महीयान् बोधयन्तमिति तत्त्वं सकलस्मरणीयं केशवं स्मरामि सदा परमपूजनीयं केशवं स्मरामि सदा परमपूजनीयम् वीरव्रतमेव परं धर्मनिदानं सुशीलमेव लोकेऽस्मिन् परमनिधानम् उपदिशन्तमिति सारं दृढमाचरणीयम् केशवं स्मरामि सदा परमपूजनीयम् केशवं स्मरामि सदा परमपूजनीयम् नेतु निजराशमिदं परमवैभवम् लयत विलयमन्तर्गत सकलभेदभावम् सङ्गमन्त्रमिति जपन्तमेकमेशनीयम् केशवं स्मरामि सदा परमपूजनीयम् केशवं स्मरामि सदा परमपूजनीयम् बिन्दुराष्ट्र संघटकं सुजनवन्दनीयम् केशवं स्मरामि सदा परमपूजनीयम् केशवं स्मरामि सदा परमपूजनीयम् केशवं स्मरामि सदा परमपूजनीयम्। আজ আমাদের হিন্দু সমাজ চারিদিক হইতে সংকটগ্রস্ত। ইহার জন্য দোষী আমরাই। আমরা দুর্বল, আমরা সুপ্ত, আমরা আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতির কথা মনেও মানি না। সমাজ চুলোয় যাক, আমার তাতে কোনো ক্ষতি নেই, নিজের স্বার্থ সিদ্ধি হলেই হলো। এই দুঃখজনক পরিস্থিতির পরিবর্তন করিতে হইলে আমাদিগকে সংগঠিত হইতেই হইবে। আমরা যাহাতে বিচ্ছিন্ন না থাকিয়া একত্রিত হই, সেই উদ্দেশ্যে 1925 খ্রিস্টাব্দে
রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রতিষ্ঠা। হিন্দু সমাজকে নিজ হাতে নিজের কল্যাণ সাধনের উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তোলাই সংঘের কাজ। মহাভারতের পথের দিশারি ভক্তির নাম প্রণাম। মরো জগতের মাঝারে অমর নিঃশব্দ মার পুণ্যদান। শত বরষের কুহেরি মায়ায় মগন যখন ভারত সূর্য, সেই আশায় করিয়া আশায় তুমি সোনারে বিজয় তুজ। মহাভারতের পথের দিশারি শত ভক্তির নব প্রণাম। বড় জগতের মাঝারে অমর এসব তোমার পুণ্য নাম। এসো মাতৃকা পথের দিশারি শত ভক্তির নব প্রণাম। সংগঠনের আহ্বানিকায় হিমালয়তে রামেশ্বর বন্দিত হলো প্রাণ ছন্দে নবপ্রেরণার পুরুষবর। মহাভারতের পথের দিশারি শত ভক্তের নব প্রণাম। মরো জগতের মাঝারে অমর এসব তোমার পুণ্য নাম। মহাভারত পথের দিশা শত ভক্তির নাম इस आपदा से इस पुण्य पुरातन राष्ट्र
को संवारने के लिए विभूति मत्वों का जन्म यहां हुआ। अधपतन की खाई में, गर्ता में लिप्त हुआ। धर्म के उत्थापन के लिए सांस्कृतिक उच्च सिंहासन मां जिस पर बैठी सुख से करती थी जग का शासन है। मां को सांस्कृतिक उच्च सिंहासन देने के लिए वर्तमान इतिहास में जिस महापुरुष ने अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित किया वह नरपुंगव परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलराम पंत हेडगेवार। परम पूजनीय डॉक्टर जी के जीवनी की कुछ विशेषताओं पर भाष्य करता हुआ यह गीत जो दो भाषाओं में हम सुनने वाले हैं, तेलुगु और कन्नड़ में, जिन दोनों गीतों में परम पूजनीय डॉक्टर जी के जीवन की महत्ता, उनके जीवन की परिस्थिति, डॉक्टर जी के गुण विशेषों का बड़े ही भावमधुर शब्दों में वर्णन किया है। चलिए सुनते हैं तेलुगु और कन्नड़ गीत को। అజాత రిపులోక సంగ్రహి అభివాదనములు కేశవ అజాత రిపులోక సంగ్రహి అభివాదనములు కేశవ 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 దేశాకాశము చీకటులతో దిక్కులేక విలప సుధాసిక్త జ్ఞాన జ్యోత్స్నచే అభివాదనములు కేశవ అభివాదనములు కేశవ అభివాదనములు కేశవ అభివాదనములు కేశవ అభివాదనములు కేశవ ఎన్ని శతాబ్దుల భావదాస్యము ఎన్నులేని ప్రణయాంభోనిధి
ఎన్ని శతాబ్దుల భావదాస్యము అభివాదనములు కేశవ, అభివాదనములు కేశవ. త్యాగమూర్తి శివి చక్రవర్తివే, త్యాగమూర్తి శివి చక్రవర్తివే. ధన్యుడవయ్యా డాక్టర్ జీ, ధన్యుడవయ్యా డాక్టర్ జీ. అభివాదనములు కేశవ, 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 కేశవ కేశవ. కేశవ 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 కేశవ. उत्थानके केशवना बलिदाना ಭಿನ್ನತೆಯ ದಮನಮಗೈದ ಸಂಘಟನಾ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಕೇಶವನ ಬಲಿದಾನ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಪುನರುತ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೇಶವನ ಬಲಿದಾನ. ಕರೆಯ ಬಾವುಟವು ಹಿಂದೂ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮೆರೆಯುವುದು, ಕರೆಯ ಬಾವುಟವು ಹಿಂದೂ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮೆರೆಯುವುದು. ಆರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯುವಕರ ಮನವು ಆರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯುವಕರ ಮನವು ಏಕಕಂಠದಿ ಮೋಗೊಡುತ್ತಿರುವುದು. ಹಿಂದೂ ಕಾಂತಿಗೆ ಮಣಿದರ್ಪಣವು ಕೇಶವನ ಬಲಿದಾನ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಪುನರುತ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೇಶವನ ಬಲಿದಾನ.
ಈಶ್ವರೀಯತೆಯ ಬೆಳೆಯಿಸಲು ರುಧಿರ ಜಲವತ ನೆರೆದಿಹನು ಈಶ್ವರೀಯತೆಯ ಬೆಳೆಯಿಸಲು ರುಧಿರ ಜಲವತ ನೆರೆದಿಹನು ಅಡಿಗಡಿಗೂ ವಿಷವ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಅಡಿಗಡಿಗೂ ವಿಷವ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಪ್ರೇಮ ಶರದಿಯಂ ಅಮೃತವನೆಸಗಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಅಮರತೆ ನೀಡಿದ ಕೇಶವನ ಬಲಿದಾನ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಪುನರುತ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೇಶವನ ಬಲಿದಾನ ವಿಶ್ವಗುರುವಿನವತಾರವದು ಹಿಂದೂ ಮಾತೆಗೆ ಬಲು ಚೆಲುವು ವಿಶ್ವಗುರುವಿನವತಾರವದು ಹಿಂದೂ ಮಾತೆಗೆ ಬಲು ಚೆಲುವು ಮಂಗಲ ಮಾತೆಯ ಮರುಗಿದ ಮನಕ್ಕೆ ಮಂಗಲ ಮಾತೆಯ ಮರುಗಿದ ಮನಕ್ಕೆ ಸುಮಧುರ ಶಾಂತಿಯ ಬಯಸಿದ ಮನವ ರಾಷ್ಟ್ರ ದೇವನಲ್ಲಿ ಸಮರಸವಾಂತ ಕೇಶವನ ಬಲಿದಾನ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಪುನರುತ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೇಶವನ ಬಲಿದಾನ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಪುನರುತ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೇಶವನ ಬಲಿದಾನ प्रसन्नता, शैशव का शुचित्व, परिस्थिति को थोड़ा सा समझना होगा। क्या थी परिस्थिति? डॉक्टर जी का जन्म 1889 का। अंग्रेजों का शासन इस देश में स्थिरपद हो चुका था और अंग्रेजों के शासन के साथ साथ इस देश के साथ अंग्रेजी शिक्षण ने अपना खेल दिखाना शुरू कर दिया था। वर्ण से भारतीय परंतु हृदय से ब्रिटिश बने हुए कर्तृत्ववान व्यक्तियों की एक पीढ़ी दर पीढ़ी इस देश के अंदर निर्माण हो रही थी। जो जो इस देश का है, चाहे वह संस्कृति हो, सभ्यता हो, भाषा हो, भूषा हो, खान पान हो, यहां तक कि हमारे पुरखे हो, उन सबको नकारने वाला और जो जो पश्चिम का है वह सब अपनाने वाला, उस पर गौरवान्वित होने वाला एक समाज हिंदुस्तान के अंदर निर्माण हो रहा था। एक संस्कृत कवि ने उस परिस्थिति का बड़ा सटीक वर्णन किया है। वो कहता है कि शस्त्रे हतास्तु रिपवो न हता भवन्ति प्रज्ञा हताश्च निहता सुहताम भवन्ति शस्त्रे निहन्ति पुरुषस्य शरीरमेकं प्रज्ञा कुलम च विभम च यशश्चन्ति। शस्त्र जो होता है ना, वो शरीर पर आघात करता है। जो आघात को भर पाने की क्षमता औषध और काल में होती है, लेकिन प्रज्ञा पर किया हुआ आघात उसे कोई नहीं भर पाता। भारत की प्रज्ञा पर आघात हो रहा था, भारत की मानसिकता पर आघात हो रहा था और एक आत्मविस्मृति का, आत्मचेतनाहीन परिस्थिति का भारत निर्माण हो रहा था। इस परिस्थिति में परम पूजनीय डॉक्टर जी का जन्म है। यह परिस्थिति विकट है,
आत्मविस्मृति की अवस्था है। और इस अवस्था में परम पूजनीय डॉक्टर जी राष्ट्र चेतना का एक मंत्र लेते हुए वर्ष प्रतिपदा के दिन जन्म ले रहे हैं। चलिए आगामी 2 गीतों में गुजराती और राजस्थानी गीतों में परम पूजनीय डॉक्टर जी के जन्मकाल की इस परिस्थिति को हम समझ लेते हैं।
भारतवासी गुण नहीं भूले केशव थारा रे। गौरव गाथा रे हिंदूपण ने भूल गया, हाँ भूलिया गौरव गाथा रे। दीनहीन सा हुआ झुकाया परदेसिया कने माथा रे। है भेड़ा सू सिंह बनाया, है भेड़ा सू सिंह बनाया हिंदू सारा रे। भारतवासी गुण नहीं भूले केशव थारा रे। भारतवासी गुण नहीं भूले केशव थारा रे। दिवड़े सू दिवड़ो जो होई जना दिवाली रे। किण शब्दा में केशव थारा रे। केशव थारा रे। परम पूजनीय डॉक्टर जी जन्मजात देशभक्त थे। जन्मजात देशभक्त माने क्या? एक स्कूल में पढ़ने वाला छोटा लड़का अपने शिक्षक के घर जाता है और वहां से उसको सीताबर्डी पर जो यूनियन जैक ब्रिटिशों का ध्वज है वो दिखाई देता है। और उस छोटे बाल नील सिटी हाई स्कूल में ब्रिटिश महारानी के राज्यारोहण के दिन मिठाई बांटी जा रही है। डॉक्टर जी उसे फेंक देते हैं। जो परदासता का प्रतीक है, उस महारानी के राज्यारोहण के प्रति आनंद क्यों जताना? यह तो राष्ट्र भक्ति के हर उस कार्य में सम्मिलित होते थे जहां पर वे हो सकते थे। लोकमान्य तिलक जी के वो अनुयायी बने। अपने जीवन के शुरू में ही कलकत्ता पढ़ने गए, वहां क्रांतिकारियों के हाथ उनका संबंध आया, अनुशीलन समिति के सदस्य बने। नागपुर में वापस आने के बाद डॉक्टर जी महात्मा जी के नेतृत्व में और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन में भी उतरे। देश के इतिहास में परम पूजनीय डॉक्टर जी के बारे में एक बहुत बड़ा अद्वितीय वैशिष्ट्य हमें दिखाई देता है। इतिहास को हम जब पढ़े तब दिखाई ये देगा कि देश के लिए समर्पित कई महापुरुष यहां हुए जिन्होंने देश में स्वतंत्रता के लिए भी प्रयास किया, परंतु परम पूजनीय डॉक्टर जी एकमात्र ऐसे महापुरुष है कि जिन्होंने उस वक्त प्रचलित राष्ट्र की स्वतंत्रता की इन दोनों धाराओं का अनुभव किया। राष्ट्र के लिए क्रांति का कंकण उठाने वाले क्रांति कार्य चल रहे थे। सत्याग्रह और अहिंसा के राह पर महात्मा जी के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था। इस मार्ग के अनुयायी उस मार्ग का अनुभव कभी नहीं करते थे। दूरी इतनी थी
प्रभु जी ने डॉक्टर जी केवल एकमात्र ऐसे महापुरुष, ऐसे देशभक्त है जिन्होंने इन दोनों मार्गों का प्रत्यक्ष कार्यानुभव लिया। और मार्गों का अनुभव लेने के बाद डॉक्टर जी के मन में कुछ चिरंतन प्रश्न निर्माण। प्रश्न ये थे कि ये दोनों मार्ग स्वतंत्रता के लिए प्रामाणिकता से प्रयत्न कर रहे हैं, उनके देशभक्ति के बारे में कोई आशंका नहीं, परंतु दोनों मार्गों का गंतव्य केवल स्वतंत्रता की प्राप्ति है। स्वतंत्रता इस देश की परतंत्रता में रूपांतरित कैसी और क्यों हुई, इसका बुनियादी चिंतन इन दोनों मार्गों के पास नहीं है। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा वो भारत देश है मेरा, इस प्रकार का जिसका वर्णन वह हमारा पुण्य पुरातन राष्ट्र, विजिगीषी राष्ट्र, पराक्रमी राष्ट्र क्यों परतंत्र हुआ, उसकी परतंत्रता के लिए जिम्मेदार कौन, इस बुनियादी प्रश्न का चिंतन किसी के पास नहीं था। यह चिंतन डॉक्टर जी कर रहे हैं। आगे के 2 गीत और डोगरी भाषा में हम सुनने वाले हैं। उन गीतों में डॉक्टर जी के अंतर्मन में संघ स्थापना के पूर्व यह जो चिंतन चल रहा था उस पर भाष्य चले, सुनते हैं। देसे दी बिगड़ी बनाई गया हो माता रेवती दा, ओ माता रेवती दा राजकुमार डॉक्टर हेड गेवा। देसे दी बिगड़ी बनाई गया हो माता रेवती दा, ओ माता रेवती दा राजकुमार डॉक्टर हेड गेवा। सुते दे हिंदू जगाई गया हो माता रेवती दा, ओ माता रेवती दा राजकुमार डॉक्टर हेड गेवा। जिसे दी बिगड़ी बनाई गया हो माता रेवती दा, ओ माता रेवती दा राजकुमार डॉक्टर हेड गेवा। 1905 बड़ा शुभ दिन आया, 1905 बड़ा शुभ दिन आया। विजयदशमी दे दिन संग सजाया, विजयदशमी दे दिन संग सजाया। पहले शाखा नागपुर लाई गया हो माता रेवती दा, ओ माता रेवती दा राजकुमार डॉक्टर हेड गेवा। देसे दी बिगड़ी बनाई गया हो माता रेवती दा, ओ माता रेवती दा राजकुमार डॉक्टर हेड गेवा। सुते दे हिंदू जगाई गया हो माता रेवती दा, ओ माता रेवती दा राजकुमार डॉक्टर हेड गेवा। डॉक्टर हेड गेवा, डॉक्टर हेड गेवा। रेवती माताए हिंद संतानस केशव रावस जय जयकार। रेवती माताए हिंद संतानस केशव रावस जय जयकार। भारत माताए हिंद संतानस केशव रावस जय जयकार। भारत माताए हिंद संतानस केशव रावस जय जयकार। केशव रावस तस बलिरामस, तस बलिरामस जय जयकार। केशव रावस तस बलिरामस, तस बलिरामस जय जयकार। रेवती माताए हिंद संतानस केशव रावस जय जयकार। भारत माताए हिंद संतानस केशव रावस जय जयकार। केशव रावस जय जयकार। केशव रावस जय जयकार। हो
अलख जगाया भले अलख जगाया लो धर्म संस्कृति राष्ट्र प्रेम मारा पाठ सभी जो पढ़ा देश प्रेम जगाया ओ भले ओ देश प्रेम